Sakantikoni angne khandakapa video naram chakswar pengram dal April ni gani tarik budvar sal yang ne khandakapa video anga prasatai gani gapa changonge dalo work board bill ko cabinet minister auni Kiren Rijiju wa face ka ha aro uni face ka matango ye bill ko rabanio gachamaro gatalni dengtanggrkani niamo mai dengtanggrkani rangko rabainga warangko talataha aro yarangko sana ganja ndiba ta ya bill ko face ka matango jen somoyo talatani ko namerike khna thama ngode ndite je mangani ya bill ko protest ka ingacham jegaling acham ndaga barang ba khushi onggen aro namneken nen gaba ko ba bia ganaha aro ya bill ko ta muslim mandirang protest kainga ni agana deba muslim mandirang protest kaja muslim mandirang ya bill ko taraken pas ka china niam gatal ko taraken rogat china chingna ya ko comment ka gaparang agan gaparang didi gaparang baditan banga chinga muslim mandirang ni support ka ni rang ko bang pretin maningan gapa khatarang ko babia bini bill ko face ka matango agan thalat matango bia agana ha aro yasan ongja या को चिंगा मुस्लिम मंदिरंग ने नामगनी ना छंची से ये बिल को राबाइंगन गपा खतरंग को बागन हा बिने आगाना निरंग कंता सामंगनी गतौवा मिनिट सोपुंगा दok सोपुंगा स्नी मंगनी गतौवा अनि गमन बेबे नांगा या गमको वाति मिसोकतना स्केन से मंगो मंगबा अडितन रुवा आरो उन बक्सना अंचंग खना थमग परांगोने फ्ला कांदे हिंदी को स्ट्रांगी कुसुक थंगता मंजानी गमन लम्मे मनसन या को छकचकी खना थमना neken masih jang mode oni gaman anga gamakade wata chainga deba adita minute rangna minutes khang mangni gata de wati misokatna gata nangna kinga bini abba chinga chipa gan gapa bakrangko simang bakna themi nibo aro bade brangko masih jang mode na simang yangni youtube o comment katna gata ba mangen andake biya yarangko gamakkon agan thalati mangna face kani ko takaha oni zamana bini machotani zamana opposition party rangoni असम ने एमपी कांग्रेस ने एमपी गौरव गोगोई ना समय को नहा वा आदिता सोमेरांग को जखाली मना वाबा या किरण रिजिजू ने या बिल निगमन थलात कपा रांगोनी बकफुली मंगना बिया आगान हा दाव या नमगनी ना राबाइंगा बिने आगान गपा कथा चुगमकन नमेन बकफुलान गपा कथा को गौरव गोगोई बा आगान चकानी रांगको तका हा आरो उनी जामानो गथाम गपाओ दंथाम मनसा रवि शंकर नबा गथाम मिनिस्टर वाचम वाबा बीजेपी नि एमपी नवा बिनाबा समय को नहा लो मिनिस्टर वाचम अनकेन साक्सानि जामानु सकनिन सकपन तके मंगना आगान अनि रांखो खनाना गता मानिंगा अंगा रवि शंकर नि आगान गपाउना खंखंदे खना तमि निया हा ने अंदे मंगबा दाल दे याकोते मछोचा खंता छेत ना समय को राइंगानि गमन याको आगान ग्रकना डिबेट खाना गता और वंदे की याको थलग्रक ना कता राइंगानी गमन हाय दे यान खनाल सरानी की से पोसा मचोत ना पदोंगा और वंदे की राज्य सभा ना बे रियांग खुगेन लोकसभा ओ मचोतानी जामनोबा और वंदे की राज्य सभा ओ बे याको आगान ग्रकानी को तकां खुगेन निगमन हाय दा नमे मानसा दे यान खनाल सोतनी सरानी जामनोसा मचोत ना पा गना अनि वन याको आंगा खंदे के न सिमंगनो वियतिंगा दालो बिल फेस का हा फेस का नि जामनो मायोंगे नागानागता मानजा ande banga Kiren Rijiju ni bill ko face ka matango ya work board bill ko face ka matango une agan thalat matango rabai muna agan thalat matang niko bangi jakon esi mangna po wati miso katinga esi mangba khana tmini pachina ya khanda ka ba khobor ko update ko san ona tinga ya salni bako atam chipak niko una agri gapan rang donggen chemode anga thamo live onari bai muna wiatlani rang ko takyan sakanti kon mutela sakanti baksa noko bisolong china china chika song thangbang china to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Musalman Waqf Repeal Bill 2024 अध्यक्ष महोदय जी आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट जी एक मिनट श्री सोगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ।
Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12-16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद
फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए, आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहली बार हुए हैं और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही। सर, डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर,